Now, dear students, coming to the second part of this mastering group discussion, we want to teach you how to understand the depth. We told you what all they try to identify. Now, we will talk about what are the qualities, other sections they're going to pick it up. Now, what are they going to pick up during this? They identify, but you have to, what are you supposed to do? You should have power of expression. You should be able to say a point very nicely. You don't have to speak all the time. There will be 15 to 20 minutes. But if you are not able to speak short and precise, because if you speak long, that is why I regularly am telling all the scenic peoples, all the other individuals who are planning to do well in group discussion, remember, do lots of lecturate. It will help you to become brilliant in your speaking, concise and precise. संक्षिप्त और सही बोलने की आपकी क्वालिटी विशेष रूप से डेवलप हो जाएगी. याद रखिएगा, ये मेरा आपसे बार बार कहना है, पावर ऑफ एक्सप्रेशन. आपको बोलने का तरीका आना चाहिए, चाहे वो लिखने के जरिए चाहे बोलने के जरिए अच्छे से आना चाहिए. सो दे वांट टू चेक योर पावर ऑफ एक्सप्रेशन. कैसे स्पीक करते हो आप, कितने प्रभावशाली बोलते हो. आजकल आप बहुत सारे स्पीकर्स को देखते हो, आप लोग सुनते हो, देख के प्रभावित होते हो. They are basically using their power of expression of thinking and speaking कि आप उनको तालियां बजाते हो. बट कभी कभी दिल करता होगा कि आप भी वो स्टेज में बैठो. सो द सेम थिंग यू हैव टू डू इट. इम्प्रूव योर पावर ऑफ एक्सप्रेशन. अच्छे से बोलना सीखिए ताकि संक्षिप्त में आप अपने पॉइंट को रख सकें. ग्रुप डिस्कशन में कोई ना कोई पहलू को आपको पकड़ना है, या सामंजस्य बना के या निष्कर्ष बना के एक हर पहलू को अध्ययन करना है, उसका मूल्यांकन का. यू हैव टू एनालाइज देम, यू हैव टू स्टडी देम, एंड वंस यू डू दैट यू automatically will sound good. So power expression is what they will also assess, which I've already told you. Identify knowledge. Now knowledge, when you will understand group discussion before, so now you will do better in gathering knowledge कि मुझे क्या बोलना है. मान लीजिए आपने एक पॉइंट बोलना है या 2 पॉइंट बोलने हैं या 3 पॉइंट बोलने हैं, तो हर दोनों तीनों पॉइंट के आधार पे उनके फैक्ट और उनके एग्जाम्पल्स और उनकी फ्यूचरिस्टिक एस्पेक्ट्स तीनों को पढ़ लीजिए. ऑटोमेटिकली आपका क्या होगा, नॉलेज भी अच्छी यूज हो जाएगी, एक्सप्रेशन भी अच्छा हो जाएगा. कई लोग बहुत सारा डाटा दे देते हैं. दे टेंड टू गिव लॉट ऑफ डाटा एंड स्टैटिस्टिक्स while they are discussing their knowledge, trying to behave like they are superior. Unfortunately, this tendency of giving too much data goes against them because it alienates them with the group. ज़्यादा डाटा देने से लोग आपको वो एक स्टैटिस्टिकल बेसिस पे आपसे दूर हो जाते हैं. उनको ऐसा लगता है कि आप उनको नीचा दिखा रहे. तो मेरी हमेशा सबसे दरखास्त है कि लेमैन लैंग्वेज में आराम से बात करिए. थोड़े डाटा ज़रूर दीजिए, मना नहीं कर रहा हूँ, बट अति मत करिए. डोंट ट्राई टू इरिटेट द अदर्स. सपोज आप ही लोग किसी के पास कोई शॉप से आए वापस एंड समबडी स्टार्ट्स टॉकिंग एवरीथिंग इन मनी कि कितने का ये कितने का ये, तो आप कभी कभी इरिटेट हो जाते हो उनसे. यू गेट इरिटेटेड. व्हाट द हेल मैन, आई हैव गॉट दिस नाउ, व्हाई यू टॉकिंग अबाउट ऑल द मनी, राइट? आप इसलिए इरिटेट हो जाते हो. तो द सेम थिंग हैपेंस हियर. डोंट गिव टू मच डाटा, गिव रेलेवेंट. You will be connected with the group, and don't ever give the data with an insulting language. Tactfully दीजिए. कभी ऐसा मत बोलिए आपको नहीं मालूम. ऐसे में क्या होता है, दूसरे को निरादर महसूस होता है. Other feels disrespected. Don't try to look superior. Remember, father always encourages, good father always encourages children, gives data politely, but bad father, he tends to suppress children. He tends to try to impress that you are only my son, behave yourself. Now this is wrong. A good father will never treat son as a inferior person. He will always encourage them to become like him in the future. So remember that. So power of expression समझ में आ गया. Knowledge अच्छे से दीजिए. Then you come down cooperation. Cooperation means allow the others also to speak. I think this is a good point. Appreciate the others. Cooperate. If they are speaking, let them speak. Okay, I don't say this that you will sit down and only clap to them.
No, you also participate, but first let them also speak. You also speak. I mean, cooperation is it's like a namkeen mixture which has some mirchi, some things mixed, all mixed. That is cooperation. Cooperation means where everything is coexisting. आप भी चल रहे हैं, ग्रुप भी चल रहा है. नेक्स्ट वी हैव गॉट सेल्फ कॉन्फिडेंस. अब आप डरिए मत, अपनी बात बोलिए तो या तो जानकारी के साथ बोलिए, और जब बोलिए तो फिर कॉन्फिडेंट होके बोलिए, डर डर के मत बोलिए. इफ यू फियर एंड स्पीक, you're going to suffer, because in the group then others will not accept you and you will score very poor in self confidence. The GTO officer who's observing you, analyzing you, will find you very poor in self confidence. अगर मैं डर डर के कोई तथ्य दूंगा तो आपको मुझ पे डाउट होने लगेगा, और जब डाउट होगा तो मेरी अथॉरिटी का कोई मकसद ही नहीं रह जाएगा. And it will become a useless lecture or a useless talk. So remember, that is very important. Be very good, be confident, and for self-confidence, the best thing is to read. अब कॉन्फिडेंस ये नहीं होता कि आप गलत बिना पढ़े बस बोले जा रहे हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस दिखा रहे. नो, दैट इज नॉट सेल्फ कॉन्फिडेंस, दैट इज ओवर कॉन्फिडेंस. एंड इफ यू डोंट स्पीक और किसी ने डाउट कर दिया, आर यू श्योर, और बोलते नो, आई थिंक नो, दैट इज अंडर कॉन्फिडेंस. इसलिए आपको ये तीनों में अंतर मालूम होने चाहिए. अंडर कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस. आप गलत तथ्य में बोले जा रहे हैं, दैट इज नॉट सेल्फ कॉन्फिडेंस, दैट इज ओवर कॉन्फिडेंस. इसलिए नॉलेज इज द बेसिस फॉर सेल्फ कॉन्फिडेंस, एंड ऑफ कोर्स योर स्पीच स्टाइल इज ऑल्सो द बेसिस. अब आप सही चीज बोल रहे हो पर डर डर के बोल रहे हो, दूसरा जन अगर टोक रहा है तो रुक जा रहे हो, दिस इज रॉन्ग, दिस विल गो अगेंस्ट यू. सो रिमेंबर दैट. नेक्स्ट वी गॉट एनालिटिकल एंड रीजनिंग पावर. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ग्रुप डिस्कशन वी हैव टू एक्सप्रेस. हम लोग ने अभी पहले पढ़ा था क्या, दे विल आइडेंटिफाई एनालिटिकल एंड रीजनिंग पावर. एनालिसिस कैसे करते हो, हाउ डू यू एनालाइज? You pick, okay, you are saying this, you are saying this. If we rightly see in the present context, yes, it is more applicable. Yes, if we learn from our past, this also is very right. Past से हम use करते हैं तो reasoning power हो जाता है, आगे क्या होगा, analysis हो जाता है. तो अगर आप ये दोनों का सामंजस्य बनाते हो, where you show certain bit of analysis, certain bit of reasoning, I think you're doing brilliant. You do brilliant, 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 brilliant. Is it clear, not clear? So remember that analytical and reasoning power आपको सुधारनी. Any doubts? Clear? Okay, we go further. Decision making. Now, while you are deciding in a group, suppose there is a group discussion going on that whom should we select as our best friend, Bhutan or Russia? See, Bhutan, there is no doubt, is one of our best friend, but along with it, Bhutan's mere presence as a single friend will not be enough. We need countries, powerful countries, to support us, so that in case of military warfare or military excursion, we have them. If we did not have Russia to support us, let me tell you, America would have never been able to help us because of distance, because of geopolitical factors, and we would have had a problem with China already. So therefore, we have to be very wise in decision making. तो डिसीजन में एनालिसिस भी आएगा, रीजनिंग भी आएगा, और आपकी लॉजिक भी आएगी. नेक्स्ट, इनिशिएटिव. अब नाउ देयर आर मेनी पीपल हु थिंक दैट व्हाइल दे हैव टू शो इनिशिएटिव दे शुड कम आउट ऑफ द फर्स्ट स्पीकर. नो, आई डोंट से इट इज नेसेसरी. आई डू एग्री, इफ यू हैव गुड नॉलेज यू कैन बी द फर्स्ट स्पीकर, बट इफ यू हैव एवरेज नॉलेज और इफ यू वांट टू analyze and speak and think and speak, so you can be second, third, fourth speaker also. But when you speak, then you show that you use those time not only to listen to other points but to analyze and come to some right point. मान लीजिए आप पहली बार नहीं बोल रहे, कोई बात नहीं, अगर आपको मालूम हो तो पहली बार बोल लीजिए अच्छे से, पर जल्दी जल्दी जब पहली बार हड़बड़ा के बोलते हैं, आप सही चीज नहीं बोल पाते, ये गलत हो जाता है, और फिर वो रूल फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन लागू हो जाता है. तो आपके जीटीओ साहब देखते हैं कि आप बहुत बेकार का टॉपिक बोल रहे हैं, तो वो गलत हो जाता है. इसीलिए मेरी आपसे दरखास्त है कि आप उसको इनिशिएटिव को प्रथम बोलने के बजाय आप दूसरे, तीसरे, चौथे भी बोल सकते हैं, कोई बात नहीं,
पर अपने आप आगे आइए, ये नहीं कि दूसरा जब कहे तब आप बोले। आप आइए और उस समय आप दूसरों के जो पॉइंट्स हैं उनको एनालाइज करते हुए अच्छा पॉइंट बोल सकते हैं। सो इनिशिएटिव बेसिकली मीन्स that you are coming forward in speaking. You can be second, third, fourth speaker, but that's the way it has to be. Is it clear? Next, determination. Now when you are clear about your approach, ये भी देखते हैं इसके कई बार लोग they start and after some time they become lethargic. They feel कि यार ये ग्रुप अच्छा नहीं चल रहा है, पहले से उनके चेहरे के हाव भाव में they look lack of energy, they lack of determination to complete. Don't do that. अपने पॉइंट को अच्छे से प्रूव करिए, जिद्दी मत बनिए, बट अगर आपका लॉजिकल पॉइंट है, कुछ दूसरों के पॉइंट भी लॉजिकल है, उनको जोड़ लीजिए, पर उसको पूरा कीजिए। ये मत करिए कि नहीं यही होगा, अरे भाई ठीक है ये भी होगा, ये सब भी हो सकता है, जो लॉजिकल। इसका ये तात्पर्य नहीं कि आप कोऑपरेशन में इलॉजिकल पॉइंट्स को अपने साथ जोड़ लेंगे, आप लॉजिकल पॉइंट्स को जोड़ लीजिए, पर काम को पूरा करिए। नेक्स्ट, मेंटल स्टेमिना। You know, when you are doing a group discussion, there are a lot of shouting going on. Somebody is saying something, somebody is saying something. Some people who are weak-minded, who have had a very pleasant parenting, घर में बड़ी शांति से रहते थे, वो उन जगहों में जाके हड़बड़ा जाते हैं और वहाँ वो मैनेज नहीं कर पाते। इसीलिए आप में से कई सज्जन लोग, बड़े सरल और अच्छे लोग भी नहीं चयन होते, क्योंकि यू डोंट हैव दी मैच्योरिटी टू हैंडल दैट मेंटल स्टेमिना। आप लोगों की बातचीत से बहुत ज़्यादा बड़बड़ा जाते हो, यू टेंड टू गेट पैनिक, दैट गोज अगेंस्ट यू। सो हैव दी मेंटल स्टेमिना टू बियर कि लोग कुछ एंटी बोलेंगे, कुछ ऐसे बोलेंगे, और चेयरफुली एक्टिव, काम, कंपोज बन के पार्टिसिपेट करिए। 15 मिनट का होगा बहुत ज़्यादा, 20 मिनट का उससे ज़्यादा नहीं होगा, तो उतनी तो आपके पास मेंटल स्टेमिना होनी चाहिए। पर कई बार ऐसा भी होता है कि आपके बगल में दो लोग जोर जोर से चिल्ला रहे होंगे या जोर जोर से बोल रहे, तो आप इरिटेट हो जाते। डोंट डू दैट, अलाउ देम, एक्सक्यूज मी, एंड यू कैन एंजॉय इट। यू शुड एंजॉय इट। यू शुड इमेजिन दैट यू हैव गॉन टू अ रिलीजियस फेस्टिवल। इंडिया में वैसे भी जब कोई धार्मिक उत्सव में जाते हैं तो क्या देखते हैं, बगल बगल में लोग जोर जोर से नारा चिल्ला रहे होते हैं और आप लाइन पे खड़े होते हैं। तो you have the tolerance, so please display that. Next, social adjustment. कई बार आपको धक्का मारने वाले लोग भी मिल जाते हैं। No, listen, and you feel यार कैसे बिहेव कर रहे हो, अरे भैया वहाँ पे न्याय व्याय नहीं है। You have to agree that people will behave funny. That does not mean that you have to tolerate, but at least they won't be extreme, they will be normal. But if you have got high sensitivity, then you will show such faces, such expressions on your face that the GTO will identify that you have problem of social adjustment. Kay people believe that, no, I don't like to talk to so and so and I would like to do this. What is all this shit? Try to adjust to everyone. Understand, India is a country of variety. You have to learn how to be impressive in front of them. Just be cool, just be polite and have the panorama of thoughts. And have respect for all. अगर आप सबके लिए सम्मान रखेंगे और विचारों की एक बहुत बड़ी गठरी रखेंगे, आपको कभी कोई परेशानी नहीं होगी। Just a second. Now, how does it? Just a second. We've gone back. Now, then we have planning ability. ये भी चेक होती है। कैसे? खासतौर से ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज में जब डिस्कशन होता है कि आगे कैसे प्लान कर रहे हैं, आगे कैसे सोच रहे हैं, इसी तरह ग्रुप डिस्कशन में भी होता है। ग्रुप डिस्कशन में भी देखते हैं कि आप किस तरह, ओके आई थिंक दिस गुड पॉइंट, वी कैन ऐड दिस पॉइंट ऑल्सो, दैट पॉइंट, यानी एक प्रकार से योजना बनाने लगते हैं कि ये भी ले लेते, ये भी ले लेते, ये उचित रहेगा। प्लानिंग एबिलिटी इज दैट वेराइटी। ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी में कौन सा पहले, बाद में कौन सा, तीसरा कौन सा, दिस ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी। I think this is good point. हम अगर इसको इससे जोड़ दें, we can add this to this. This is all there in group discussion, group planning, everything comes up. So that is also there. याद रखिएगा ग्रुप डिस्कशन आपका प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क में भी होता है, पर एक अलग रूप से होता है। वो एक स्वाभाविक रूप से होता है, नेचुरल तरीके से होता है, जिसमें आप प्लान बनाते हैं, ऐसे बांधेंगे ऐसे,
तो ग्रुप डिस्कशन इज नॉट द वन विच इज ओनली हैपनिंग इन ग्रुप डिस्कशन, दो होते हैं, या ग्रुप प्लानिंग या initially screening. It is also happening during the time you make plan in progressive group tasks. You make plan in group obstacle race. तो उधर भी छोटा सा परिचर्चा होता रहता है, एटीट्यूड देखते हैं कि आप प्लानिंग कैसे करते हैं, सबको जोड़ते कैसे और योजना कैसे बनाते हैं. नेक्स्ट ऑर्गेनाइजिंग भी उसी से कि कौन आगे जाएगा कौन पीछे जाएगा, दैट इज देयर. देन सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. यू हैव टू कंप्लीट द ग्रुप डिस्कशन. और जब आपकी अप्रोच में सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हमें अच्छा करना चाहिए, हमें ये पहलू भी देखना चाहिए, हमें बुद्धि भी रखनी चाहिए, जब आप जिम्मेदार होते हैं तो आपके विचार बहुत अच्छे होते हैं, बृहद होते हैं, ब्रॉड माइंड, एंड यू हैव ऑल द थिंग्स व्हिच यू inculcate, so that makes you wonderful, and that is how the group discussion person picks up. Sometime आपकी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क बातचीत कर रहे तब भी देखी जाती. आप ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस में इसको चोट ना लग जाए तब भी आपकी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती. कई बार आप ग्रुप डिस्कशन में टॉपिक दे दिया जाए कि कैसे सुधारा जाए तो आपकी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बातचीत के थ्रू भी आती. When they give you how will you improve the country in some, that time your approach of talking, the points you give also speaks of sense of responsibility. Is it clear? फिर देन आता है ability to influence the group. मैंने हमेशा देखा है कि कुछ लोग जब सही बात करते हैं, वाजिब बात करते हैं, अच्छे तरीके से बात करते हैं, they talk nicely, they speak relevantly, they are able to influence the group is able to accept them because they don't feel challenged. उनसे चैलेंज नहीं महसूस होता, डोमिनेट नहीं होता, कोऑपरेशन की आभास होता है. दैट्स इंपॉर्टेंट. सो इफ यू हैव दैट एबिलिटी टू टॉक बट डोंट चैलेंज पीपल, डोंट शाउट. अनफॉर्चुनेटली शाउटिंग इज अ वेरी बैड एक्सरसाइज विच बिगिंस फ्रॉम वन साइड एंड इट पासेस ऑन टू द अदर. एक जन जब ज्यादा देर चिल्लाता है तो धीरे धीरे दूसरे को भी उसका असर हो जाता है. फिर वो जान जाता है कि ये व्यक्ति बिना जोर से बोले शांत नहीं होगा और धीरे धीरे वो बीमारी उधर से उधर ट्रांसफर हो जाती. तो मेरी हमेशा एक बिलीव है कि आप शाउटिंग कैरेक्टर्स ना पसंद कीजिए ना बनिए. इवन इफ यू आर काउंटरिंग इट शुड बी इन अ प्लेजेंट वे. रिमेंबर इट हैपेंस वेरी, आई नो, आई हैव अंडरस्टूड दिस मेनी अ टाइम. यू हैव अ shouting teachers, you have shouting parents, you have shouting brothers, you automatically over a period of time knowingly unknowingly become like them because आप उनको काउंटर करते हो और काउंटर में आप बन जाते हो. And then you don't realize that you are already a mental case in that level. So you try to control your this thing, be cool, but also manage small, excuse me, please, have your humor, you will do well. Next, एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द ग्रुप में ये भी आता है कि आप दूसरे को अप्रिशिएट करो, तभी दूसरे लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे. बट दिस इज ऑल्सो डन बिफोर द ग्रुप डिस्कशन एंड ऑल्सो इन द बैरिक्स. जब आपको बैरिक में लोग पसंद करते हैं, आप अच्छे मैनर्स और एटिकेट्स के होते हो, यू केयर फॉर द अदर्स, यू लाइक देम, यू हैव गुड वाइब्रेशंस, पीपल लाइक यू एज अ पर्सन, देन ऑटोमेटिकली दिस इज ऑल्सो रिफ्लेक्टेड इन योर ग्रुप एक्टिविटी. अगर आप एक अच्छे पसंद किए जाने वाले इंसान हो तो आपका ग्रुप डिस्कशन में वो लोग आपसे सहमत भी जल्दी होते हैं. इमोशनल फैक्टर है, बट आपकी जो बातचीत का अंदाज है, बातचीत का लहजा है, उनको इज्जत देने का लहजा है, वो उनको पसंद आता है. लर्न टू कनेक्ट विद द ग्रुप बिकॉज लीडरशिप इज अबाउट हाउ यू कनेक्ट विद द ग्रुप एंड हाउ देयर आफ्टर इंटेलिजेंटली यू परफॉर्म. लीडरशिप, नेतृत्व में बहुत जरूरी है कि समूह के साथ जुड़ो, फिर उसके बाद कैसे आगे बढ़ते हो. रिमेंबर दैट. नेक्स्ट वी गॉट करेज. करेज होती है पर्टिकुलरली जब आप कोई पॉइंट्स देते हो कि हमें ये करना चाहिए, पर उसमें बुद्धि लगा के करेज दिखाते हो. इट इज गुड. देयर आर सम पीपल हु आर नॉट एबल टू स्पीक अप, डरते हैं, बोलने में हिचकिचाते रहते हैं, तो दे आर नॉट एबल टू डू इट. इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ प्लीज डू योर लेक्चरेट्स अ लॉट और धीरे धीरे छोटे छोटे पॉइंटर्स रेडी करिए लेक्चरेट के साथ कि मुझे अगर एक छोटा पॉइंट देना है तो क्या होगा, ये छोटा पॉइंट देना है तो क्या होगा. तो ऑटोमेटिकली आपके पास धीरे से तैयार हो जाएंगे और आपकी परिचर्चा अच्छी और समझदार हो जाएगी.
Hope you have understood something. We will continue with the further things. So by the end of the whole exercise, by repeating, by explaining, by again and again elaboratively teaching, not to bore you, but to repeat and make it strong in your mind, we will have another session and you learn from that. Hope you picked up some more points from this, and keep watching, keep learning, and keep becoming. Thank you very much, Jane.